Hi everyone, good morning. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So I welcome you all to another week ahead wala video. So let's discuss quickly ki what is there in store for Nifty, the other trades that are running, ठीक है, and what are the other stocks that are there in my focus. So let's discuss very quickly, ठीक है. So as you see on Nifty, ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक है, मतलब थर्सडे को. I was out because of some reasons, but this is the point that I wanted to show. Okay, and see, hum this is a falling supply trend line. Okay, we started falling from here. These are the points. Okay, but the difference in all these 3 points is the only major difference is these two candles, this one and this one, are bearish engulfing candle. This is not a bearish engulfing candle because they did not engulf the previous day low. Okay, now the next interesting point, if you see over here, okay, this candle, okay, and this fall, it is associated with a very high volume above its 21-day average volume. Okay, this fall and this top over here is again associated with a very high volume with above its 21-day average traded volume. Okay, but if you see this top and if you see this fall, it is not at all above its average volume. क्या शो करता है ये बस इतना शो करता है कि दिस इज अ रिट्रेसमेंट. ओके, दिस इज अ रिट्रेसमेंट. ओके, दिस इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल, ये नहीं है. ओके, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ठीक है. इट इज ओनली एंड ओनली अ रिट्रेसमेंट ओवर हियर राइट नाउ. ओके, and I was anticipating this candle, this green candle which happened on Friday. Okay, and I will tell you the very reason. इसके पीछे data है और कुछ नहीं है, ठीक है. तो the one analysis because of which I was expecting this green candle was this volume. Okay, this volume over here and this volume over here. Okay, these volumes were missing in this fall. It was not even equal to its average traded volume of the last 21 days. Okay, विच शोज कि जो कोई भी शॉर्ट कर रहा है ना, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ कन्विक्शन नहीं है. और अगर वॉल्यूम नहीं होगा ना तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी नहीं होने वाला है, ठीक है. और जब तक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होगा, जब तक सिस्टम में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स नहीं आएंगे, मार्केट में ऐसा करेक्शन नहीं आने वाला, ठीक है. ये वाला करेक्शन, ठीक है, फिर ये वाला जो करेक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक का देखा था, ठीक है, ये नहीं होने वाला, ठीक है. तो दैट इज द ओनली रीजन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल ओवर हियर, एंड इट केम डाउन, रिट्रेस्ड, इस लाइन के नीचे आया, 17,807 के नीचे आया. लेकिन आई वाज लाइक आई विल वेट फॉर अ फॉलो अप, ठीक है. एक फॉलो अप रेड कैंडल मिलेगा, देन ओनली इट इज कंफर्म दैट द ट्रेंड इज डाउन. बट एज सुन एज ये फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बना, इट वॉज वेरी मच कन्फर्म्ड, ओके, कि वी आर गोइंग अप, ठीक है. एंड द प्राइस एक्शन, मैं पिछले वीडियोस में भी बोल रहा हूँ, आप जाकर के चेकआउट करना कि हम यहाँ तक गए हैं नीचे से भाग करके ऊपर, ठीक है, विथ वेरी वेरी लेस रिट्रेसमेंट या फिर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है. इट इज वेरी लाइकली दैट वी आर गोइंग टू पुल बैक अ लिटिल, एंड फिर ये पुल बैक के बाद हम ऊपर जाएंगे. तो नाउ द प्राइस एक्शन दैट मेक्स सेंस ओवर हियर राइट नाउ इज, okay, which has the highest probability to play out is that we are going to break out of 18,200 zones. 18,200 तोड़ेंगे हम, और उसके बाद 18,400 18,600 को तोड़ते हुए we are going to make all time highs in this month only, moreover in this month only. This is the very high probability game that is going to play out in the coming weeks, ठीक है. And I am bullish on the Nifty right now, ठीक है, unless and until, okay, ठीक है, आप एक लेवल मार्क करके रख लो, ठीक है. This view of my bullishness will get negated or will get flushed only if we break this low, ठीक है. ये फ्राइडे का जो लो है ना, अगर हम इसको ब्रेक करके इसके नीचे की क्लोजिंग दे दे रहे हैं with a significant increase in the volume above his 21-day average volume, then only my view will get negated. But as of now the probability says, the higher probability game over here right now is कि हम ऊपर गए, रिट्रेसमेंट हो गया. अब रिट्रेसमेंट के बाद this is the start of the new move, okay, and we are going to make an all-time high very soon on the Nifty within this month. Okay, so that was the logic for Nifty for me. Okay, let's quickly see कि जो हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है उनमें क्या हो रहा है. एंड डाल्को में कुछ नहीं हो रहा है, इट्स मोर ओवर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन. लेट्स सी व्हाट हाउ इट प्लेस. सुवन में आई एम टेलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कुछ नहीं हो रहा, बस एक कंसोलिडेट कर रहा है. ओके, एंड
as soon as it breaks out of this level of 630, it is going to hit a fresh highs of 660, 670. So I'm going to hold this trade very easily. Okay, next we have is JK paper. Okay, JK paper, see क्या हो रहा है, move consolidation, move consolidation. Okay, and again there will be a fresh move over here. So this is JK paper and the price action, nothing to worry over here. AWL में I was anticipating this moves, ठीक है, ऑलरेडी एक ओवर हीटेड, ठीक है, ओवर बॉट स्टॉक हो चुका था, तो दिस मूव हैड टू कम. ओके, देयर वाज नो पॉइंट कि मूव नहीं आता, ये मूव आना ही था. बट आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, विच इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, सी दिस वॉल्यूम्स. ठीक है, every volume in which the stock has gone up is above its 21-day average volume. ठीक है, एंड द वॉल्यूम्स आर इन द रेंज ऑफ, ठीक है, वो किस रेंज में वो भी बता देता हूँ आपको. 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 29, 3 करोड़ के वॉल्यूम, ठीक है, 4 करोड़ के वॉल्यूम पे आया, इस इतने वॉल्यूम पे स्टॉक ऊपर जा रहा है. और जब ये 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है, पहले दिन 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो वेरी लेस देन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 1 करोड़ 70 लाख. एंड जो कल के दिन सर्किट लगा ना, लोअर सर्किट, इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं थी. तो इसमें एक चीज नोटिस करना, ठीक है, कि जिस किसी इंसान ने भी इस स्टॉक को, या जिस किसी प्लेयर ने भी इस स्टॉक को यहां से यहां तक लेकर के गया है ना, ऐसा नहीं होने वाला है कि ये लोअर सर्किट लग लग करके नीचे आ जाए पूरा यहां तक. दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन. ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मनी है, स्मार्ट मनी है, जिसने यहाँ पे एंट्री ली, और ये जो मूव्स हो रहे हैं ना, ये बहुत स्मार्ट मनी था. ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज एन ओवरबॉट स्टॉक. तो इसमें जब, और एक चीज याद रखो, जब भी किसी ओवरबॉट स्टॉक में करेक्शन होगा ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस. तो अब मेरे को जो प्राइस एक्शन समझ आ रहा है ना, कि 525 के अराउंड जब ये आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय, एंड प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि 525 के अराउंड इसका सर्किट ओपन हो जाए. इसमें फिर से ऊपर के लेवल्स अपने को देखने को मिलेंगे, और इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा. तो दिस इज द लाइकली प्राइस एक्शन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग इन एडब्ल्यूएल राइट नाउ. ठीक है, रिलायंस अगेन नथिंग टू वरी, इट इज बैक इन इट्स जोन. ठीक है, वो 2600 के ऊपर वाला जोन इसमें वापस आ गया, कोई चेंज होगा बता दूंगा. टाटा स्टील, इट इज कंसोलिडेटिंग एंड गोइंग अप. HSCL again, जब तक 78.15 is not breaking on a closing basis, again nothing to worry, there are no volumes right now. ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन ऑफ द स्टॉक. जब स्टॉक को बढ़ना था तो वॉल्यूम देखो, और जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो वॉल्यूम देखो. तो इट्स अ सिंपल कंसोलिडेशन, नथिंग टू वरी ओवर हियर. जेके लक्ष्मी सीमेंट, द रीजन वाई आई टोल्ड ऑन थर्सडे कि इसमें स्टॉप लॉस मत बुक करना, ठीक है, क्योंकि ये सेटलमेंट प्राइस है, इस कैंडल को मत देखो. लेकिन 3:25-30 पे जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी ना, तब यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही थी नीचे से, विच शोड अ स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम. ओके, बट सेटलमेंट प्राइस नीचे आ जाता है तो कैंडल ऐसे बन गई. लेकिन बस इसको इतना सा मूव दो 450 को एक बेस मान लो. ठीक है, 450 इज द स्टॉप लॉस फॉर अस. अगर 450 किसी भी हाल में तोड़ रहा है, वी विल एग्जिट इट आउट. बट इसको थोड़ा सा स्पेस दो मूव करने का, ये थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो ये कभी कभी इसके मूव्स ना थोड़े वाइल्ड होते हैं. तो लेट इट प्ले इट आउट, अगर कोई इसमें चेंज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा. Now come with relaxo. Relaxo, see again it is simply consolidating. ठीक है, एंड उसके ऊपर का ये ब्रेकआउट दे देगा बहुत जल्द. तो relaxo again nothing to worry. Action, I am a little bit concerned right now because ये momentum पता नहीं क्यों fizzle out हो रहा है. अगर आप पैटर्न वाइज देखोगे तो this is a pole and this is a flag right now. ठीक है, फ्लैग के लोअर एंड पे है, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये यहाँ से इस फ्लैग को ब्रेकआउट दे दे. If by any chance it closes below 226.30, I'm going to consider this as a stop loss and I'm going to exit this stock. प्राज सही जा रहा है, जाने दो. मूव दिया है ऊपर, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये अब 446 के ऊपर ही बेचना है इसको, आराम से जाएगा. आरसीएफ अगेन अपनी एंट्री हुई है 100.65 के अराउंड, इसको आराम से होल्ड करो. ठीक है, 12 साल का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेट हो रहा है, आराम से ही चलेगा, कोई इशू नहीं है. जीएसएफसी थोड़ा सा अब ये वाइल्ड हो रहा है, with the move it gave from 120 to 190 200. अभी थोड़ा सा वेल्ड हो रहा है, अब इसको पूरा रिट्रेस करने दो प्रॉपर. लेट्स सी इफ दिस बॉटम होल्ड्स आउट. इफ ये बॉटम को होल्ड कर लेता है, देन विल लुक फॉर अनदर एंट्री इन द स्टॉक टू फॉर द अबव 200 लेवल्स. बट पहले इसको बॉटम बनाने दो प्रॉपर, इसको टाइम दो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए. जीएमडीसी नथिंग देयर. बिरला सॉफ्ट मैंने शेयर तो किया था ट्विटर पे भी, ग्रुप में भी, लेकिन आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन है. ठीक है,
जब तक मुझे 498 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाला, बिकॉज आई नीड मोमेंटम। ठीक है, एंड आई नीड अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी गेम सो दैट इट वर्क्स आउट इन आवर फेवर। तो जब तक 498 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा मैं ये शेयर नहीं करने वाला। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक इज गोइंग फाइन। ठीक है, नो वरीज ओवर हियर, एकदम सही जा रहा है। 4759 के ऊपर एक और ब्रेकआउट हो जाएगा आईसीआईसी बैंक में, इसको चलने दो। एसआरएफ इज आर लेटेस्ट एंट्री राइट नाउ। ठीक है, जो हम फ्राइडे को एंटर किए। अब इसका लॉजिक समझो आप। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। इसके ऊपर की ब्रेकआउट हमने दी, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमने रिट्रेस किया। रिट्रेसमेंट थोड़ा सा इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे तक गया। ठीक है, लेकिन हम फिर यहीं से ऊपर आ गए। नाउ yesterday we closed, we hit a new fresh all time high in SRF। ठीक है, सो नाउ इसी को लॉजिक को देखते हुए मैंने 2745 पे मेरी एंट्री हुई है। माई एंट्री इज एट 2745, एंड जिसने भी मेरा ट्रेड फॉलो किया होगा ना, मेरे मैसेजेस फॉलो किए होंगे, उसको तो 2740 तक क्या 2735 तक की एंट्री मिली होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे एंट्री लेने के बाद, मेरे मैसेज डालने के बाद इंट्राडे में ये नीचे आया था 5 मिनट चार्ट पे, तो लोगों को अच्छी एंट्री मिली है। ठीक है, तो अब इसको मैं बेसिकली होल्ड करने वाला हूँ। इसको मैं स्टॉप लॉस देने की जो मैं टारगेट सोच रहा हूँ ना, ये मैं स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ का प्लान कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट लेवल का 2662 के नीचे। अभी मैंने क्वांटिटीज थोड़ी कम रखी है। जैसे ही मंडे को ये वाला हाई निकालेगा ना, ये जो लास्ट दिन का हाई था विच वाज अराउंड 2773, जैसे ये हाई निकल के इसके ऊपर 15 मिनट आधा घंटा ट्रेड करेगा, मैं इसमें और ऐड करने की कोशिश करूंगा एल पिरामिड इन इट। अब जो मेरे नज़र में एक ट्रेड है ना, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, अगेन मेटल सेक्टर, वेरी बुलिश अपॉन आई एम। अब आ जाओ इसमें लॉजिक समझो। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन अ रेजिस्टेंस, एंड वी आर ऑलमोस्ट अगेन एट दैट लेवल। ठीक है, तो इसमें अलर्ट्स ट्रिगर रख लो आप लोग बना करके 768.3। अगर इसके ऊपर जाएगा और ट्रेड करेगा 15 to 30 मिनट्स, या फिर एट डे एंड अगर यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है अपने को, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। अगर एंट्री बनेगी तो मैं आपको पिंग कर दूंगा ग्रुप में। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो, आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। सारे लाइव अपडेट्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, एवरीथिंग आई अपडेट ओवर द ग्रुप। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉक विच यू हैव टू कीप इन योर रडार। ये ब्रेकआउट देगा तो मैं आपको पिंग करूंगा, तभी लेंगे इसको, अभी नहीं लेना है। इसमें भाग करके किसी को एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेकआउट देगा मैं आपको पिंग करूंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। Thank you all for watching this video, and if this video is helping you out in any way, please do leave a like, share and subscribe to the channel. And have a nice weekend, and I'll catch you back guys again on Monday with another analysis video. So thank you and bye bye.